Good morning, students. So this video we are going to be making is on the topic translation as well as the lac operon. Two things we are going to discuss in this: translation as well as lac operon or regulation of gene expression. So this image, which I will be sharing, is the NCERT image of translation. This image is shown to you is the diagram of translation. You can see that there is yellow color mRNA strand which is being linked to the small ribosomal subunit. So this light green color structure which is there, to which mRNA is been attached, is small ribosomal subunit, and you can see mRNA is having the codons on it. So mRNA is having the codons, and with it is attached to small subunit. Later on, the big subunit of ribosomes also attached to it. So on this, there is a translation process going on because it is energetically requiring process. It requires energy. So the tRNAs are, prior to the translation, they are charged. So this is a charged tRNA which is coming. What do you mean by charging of tRNA? That means a tRNA which is having any amino acid linked to a 3' and in the presence of ATP, that is a charged tRNA. So this type of tRNA comes, and its incoming tRNA is just will read this code from this side and will attach it to this code of the mRNA, and this will be the pairing between the anticodon part UUA and codon part AAU, and this will be, there will be the complementary pairing. You can see this first incoming tRNA is having a amino acid on it, ASN or asparagine. So this will come here and will attach, and you can see that in the already in position is there, in at which GUU codon is being linked with CAA anticodon containing tRNA, and is also having the protein called valine. So valine is present, and what you can see, another adjacent tRNA is having a long chain of amino acids, and it is already attached with the anticodon and codon hydrogen bonding, GCA codon and CGU anticodon. This tRNA is linked, and it is having a chain of amino acids 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 amino acids are joined together, and the last bond, as you can see by the diagram, is being transferred to valine. So what is important to understand over here is that this tRNA with a long chain of amino acid will be transferred to the valine amino acid group, and it will be transferred to the valine, and this tRNA will become empty tRNA, and it will then exit through, like this one is exiting. So this tRNA will also, after transferring the chain, will become empty, and it will also get removed from this site, and consequently the ribosomes will move one genetic code, one triplet ahead. So in this way only, from one side, incoming tRNAs will keep on coming, will keep on attaching to the codes, and then this chain will be getting on elongated, and from the last, the tRNAs will be getting removed, and this process will be step by step going on the ribosomes, and this process is known as translation. You can see the paragraph is saying the cellular factor responsible for synthesizing protein is ribosome. The ribosome consists of structural RNAs and about 80 different proteins in its inactive state. It exists as two subunits, a large subunit and the small subunit. So what this till now it is explaining that ribosomes के अंदर क्या है, राइबोसोम्स एक ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बने ही हुए दो मॉलिक्यूल से हैं, आरएनए और प्रोटीन से,
और उनका दूसरा नाम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स भी होता है। तो वो आरएनए और 18 डिफरेंट प्रोटीन से बनते हैं और इनके दो सब यूनिट्स होते हैं, एक छोटे सब यूनिट और एक बिगर सब यूनिट। सो नाउ जब छोटे सब यूनिट, अभी बता रहे इनिशिएशन के वक्त क्या होता है, जब ट्रांसलेशन बिगिन होती है उस वक्त क्या होता है, द स्मॉल सब यूनिट इनकाउंटर्स एन एमआरएनए। स्मॉल सब यूनिट के पास ही सबसे पहले एमआरएनए जाकर अटैच होता है। देयर आर देन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन एमआरएनए टू प्रोटीन बिगिंस, तब ये शुरू हो जाती है। और देन देयर आर टू साइट्स इन लार्ज सब यूनिट, तो फिर लार्ज सब यूनिट भी जुड़ती है और लार्ज सब यूनिट में दो साइट्स होती हैं, दो जगह होती हैं जहां पर सब्सिक्वेंट अमाइनो एसिड भी जुड़ सकते हैं, पर वो तभी जुड़ेंगे जब टीआरएनए जुड़ जाएंगे और वो क्लोज इनफ होंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड उन दोनों के बीच में बन जाए। तो राइबोसोम्स आल्सो एक्ट कैटलिस्ट। राइबोसोम ही वो एंजाइम रखता है, लार्ज सब यूनिट वो एंजाइम रखता है जो ये ट्रांसलोकेशन करवा सके, चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर कर सके फ्रॉम वन tRNA to another, and that 23S rRNA ही ग्रुप है जो बड़े राइबोसोम की, बिगर राइबोसोम के अंदर 23S rRNA नाम का आरएनए होता है, जिसे पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम भी कहते हैं, और वही ये ट्रांसफर करता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। तो ये आपने इसमें समझना है। देन आपको ये बता रखा है कि इसे राइबोजाइम भी बोलते हैं बिकॉज ये आरएनए कंटेनिंग एंजाइम है और फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड करवाती है। And translation unit in mRNA is the sequence of RNA that is flanked by start codon. ट्रांसलेशन यूनिट का स्ट्रक्चर बताया, जैसे आपको एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का स्ट्रक्चर बताया था हमारी प्रीवियस वीडियो में, ट्रांसक्रिप्शन वाली में हमने बताया है कि प्रमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होती है सेंटर में, और आपका टर्मिनेटर रीजन होता है। प्रमोटर कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड तरफ होता है और स्ट्रक्चरल जीन सेंटर में होती है, और टर्मिनेटर 3' तरफ होता है कोडिंग स्ट्रैंड के। इसी तरह से ट्रांसलेशन में भी जो स्टार्ट कोडोन होता है वो आपका 5' रीजन तरफ होता है एमआरएनए के। स्टार्ट कोडोन AUG होता है हमेशा हर ऑर्गेनिज्म में, एंड ये 5' एंड तरफ होता है एमआरएनए में। स्टॉप कोडोन्स आपके 3' एंड तरफ होते हैं एमआरएनए में। बीच में आपकी जो चीज ट्रांसलेट होनी है, जेनेटिक कोड जो पॉलीपेप्टाइड में बनना है सीक्वेंस एमआरएनए से जिससे पॉलीपेप्टाइड बनना है, वो होता है सेंटर में। ठीक है, तो यही बताया ट्रांसलेशन यूनिट in mRNA is the sequence of RNA that is flanked or that is surrounded by a start codon and a stop codon for synthesis of polypeptide. And mRNA also has some additional sequences that are not translated and are transferred to untranslated regions, referred to as. तो mRNA में और additional sequences भी हैं, दो sequences हैं, कुछ 5' एंड के भी उस तरफ हो सकते हैं, बिफोर हो सकते हैं, और कुछ 3' एंड के आफ्टर स्टॉप कोडोन भी हो सकता है ऐसे सीक्वेंस, जिन्हें अनट्रांसलेटेड रीजन्स बोलते हैं, UTRs बोलते हैं, और ये ज्यादातर ट्रांसलेशन की प्रोसेस को और अच्छा बनाते हैं, efficient बनाते हैं. For initiation, the ribosomes bind to the mRNA at the start codon AUG that is recognized only by initiator tRNA. Initiation के लिए राइबोसोम्स mRNA को बाइंड करते हैं और स्टार्ट कोडोन पे AUG के रिकॉग्नाइज होते हैं ओनली बाय इनिशिएटेड tRNA. Only by initiated tRNA, the ribosome proceeds to the elongation phase of protein synthesis. और फिर बाद में इनिशिएशन फेज धीरे धीरे जाके इलोंगेशन फेज में बदल जाती है. द राइबोसोम नीड्स टू इलोंगेशन फेज, देन प्रोसीड हो जाता है, धीरे धीरे एक एक कोडोन पढ़ता जाते हैं tRNAs, और पॉलीपेप्टाइड चेन नए इनकमिंग tRNA के ऊपर वाले अमीनो एसिड पे ट्रांसफर कर दी जाती है. इस तरीके से पूरा जेनेटिक कोड रीड हो जाता है. एट लास्ट स्टॉप कोडोन अचीव होता है एंड देन अमीनो एसिड्स वन बाय वन ट्रांसलेट होके सीक्वेंस डिक्टेट, जो भी डीएनए का सीक्वेंस होता है या जो भी एमआरएनए बनाता है उसी से क्या बन जाता है, एक पॉलीपेप्टाइड बन जाता है. एट द एंड रिलीज फैक्टर बाइंड्स, लास्ट में जो स्टॉप कोडोन होता है उससे रिलीज फैक्टर जुड़ जाते हैं, टर्मिनेटिंग ट्रांसलेशन, जिससे कि ट्रांसलेशन खत्म हो जाती है, रिलीजिंग कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम्स. और राइबोसोम्स कंप्लीटली हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड भी अलग हो जाता है, रिलीज फैक्टर्स भी अलग हो जाते हैं, राइबोसोम भी स्मॉलर बिगर राइबोसोम के सब यूनिट्स हट जाती हैं, जिससे कि ट्रांसलेशन
स्टॉप हो जाती है। तो ये आपका ट्रांसलेशन का प्रोसेस था, इसमें भी इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन था। देख लिया कि रिलीज फैक्टर्स के जुड़ने से ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाती है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है। ठीक है, कि जीन एक्सप्रेशन की रेगुलेशन से आप क्या समझते हो, और जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन किन किन स्टेप्स में होता है, और क्यों होता है, और कैसे होता है। तो आप ये पैराग्राफ देख पा रहे हो, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन का मतलब है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रेफर्स टू अ वेरी ब्रॉड टर्म, बहुत बड़ी टर्म है, जिसका जो अकर होती है बहुत लेवल्स पे रेगुलेट कर सकते हैं हम जीन एक्सप्रेशन को। पहले तो हमें नेक्स्ट लाइन में यही बताया कि जीन एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या है। जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड। जीन एक्सप्रेशन के रिजल्ट में पॉलीपेप्टाइड बनता है। इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल्स, और वो कई लेवल्स पे, जो 4 लेवल्स लिखे हुए नीचे, इन लेवल्स पे ये रेगुलेट किया जा सकता है। मतलब हम कंट्रोल कर सकते हैं, या सेल कंट्रोल कर सकता है कि कौन सा पॉलीपेप्टाइड कब बनना है, उसका टाइम, या कौन सा पॉलीपेप्टाइड कब ट्रांसलेट होना है, या कौन सा एमआरएनए बनना है। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कर सकते हैं रेगुलेट, कितना बनना है अमाउंट में, और कितना प्रोटीन बनना है, और कितना ऑलरेडी है तो हम स्टॉप कर दें, ट्रांसलेशन को होने से बंद स्टॉप कर दें। तो यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन के ये 4 पॉइंट्स हैं। पहली बात, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, यानी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ही कंट्रोल्ड हो। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, एमआरएनए बनना ही कंट्रोल्ड हो। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हो गई रेगुलेशन। सेकंड, प्रोसेसिंग लेवल पे, मान लो एमआरएनए बन भी गया है तो अब उसकी जो प्रोसेसिंग होनी है, कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग उसमें होनी है, उस लेवल पे रेगुलेशन हो सकती है जीन की। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए, अब आपके पास प्रोसेस्ड एमआरएनए है, तो अब उसके ट्रांसपोर्ट हो रही है नहीं होनी है, उसके लेवल पे भी उसे वहां पे भी रेगुलेट किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट चाहे तो करवाएं उस एमआरएनए को, या ना करवाएं सेल। उसके बाद फोर्थ लेवल पे जहां रेगुलेशन हो सकती है जीन एक्सप्रेशन की, वो ट्रांसलेशनल लेवल। मान लो ट्रांसपोर्ट हो भी गया है वो एमआरएनए, साइटोप्लाज्म में आ गया न्यूक्लियस से, तब भी अभी भी उसके पास उसके राइबोसोम जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं स्मॉल सब यूनिट उस एमआरएनए से, अभी अभी हमने पढ़ा ट्रांसलेशन का। और लार्ज सब यूनिट जुड़ी है कि नहीं जुड़ी, या टीआरएनए से उसको आके रीड कर रहे हैं कि नहीं। तो ट्रांसलेशन लेवल पे भी हम जीन एक्सप्रेशन कर सकते हैं, सेल्स जीन एक्सप्रेशन करते हैं। अभी ये बात और आती है कि आपके एग्जाम्पल, इसका क्या एग्जाम्पल है। जैसे कि हमने देखा है 2 तरह की एंटीबायोटिक्स हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन स्टॉपिंग एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, जो कि कोई बैक्टीरियल डिजीज होने में सेल वॉल सिंथेसिस स्टॉप कर देती है। मैंने उससे बैक्टीरिया जब अपनी सेल वॉल ही नहीं बना सकता, उसका स्ट्रक्चर वो इट कैन नॉट ग्रो इटसेल्फ। Then second type of antibiotic is like tetracycline. For these are acting on the ribosomes sites, means either on the small ribosomes or large subunit, or they interferes with some proteins, with some enzymes that help that are stopping the translation of the proteins of the bacteria. So in this way we can know that if anyhow the transcription has done, the mRNA has prepared, then also at translation level the regulation is still present. So their host specific. With this example you understood that regulation is very important. Now in the next page it will be explaining that how the regulation take place in the prokaryotes. This was about eukaryotes, but now about prokaryotes. So this is the gene expression of prokaryotes. The genes in a cell are expressed to perform a particular function or a set of functions.
एवरी जीन, दिस लाइन इज वेरी इजी, दैट जीन सेल्स में एक्सप्रेस हो रही है ताकि वो कुछ ना कुछ अपना काम कर सके. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एंजाइम की जीन है, एक एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इज सिंथेसाइज्ड बाय ई कोलाई. This is synthesized by E. coli. It is used to catalyze the hydrolysis of disaccharide lactose into galactose and glucose. और ये एंजाइम ये E. coli इसीलिए यूज करता है, इससे ये डाइसैकेराइड शुगर लैक्टोज को तोड़ता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज में. देन बैक्टीरिया यूज देम एज एनर्जी सोर्स, और फिर वो ग्लूकोज को एनर्जी सोर्स की तरह यूज कर लेता है, उससे ग्रो होता है उसको यूज करके खाने की तरह. Hence, if the bacteria do not have lactose around them to be utilized for energy source, इसी वजह से अगर बैक्टीरिया के पास कोई भी लैक्टोज नहीं है जिसको वो एनर्जी सोर्स की तरह यूज कर ले, लैक्टोज नहीं है उसके पास, then they would no longer require the synthesis of enzyme beta galactoside. उनको कोई ये वाली एंजाइम बनाने की जरूरत ही नहीं है. Therefore, in simple terms, हम ये कह सकते हैं कि it is metabolic, physiological, environmental condition that regulate the expression of gene. कि बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक यानी कि उसकी केमिकल रिएक्शन जो उसके अंदर होते हैं वो, फिजियोलॉजिकल यानी उसकी बॉडी में क्या सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है, कितनी एनर्जी उसे चाहिए, और इन्वायरमेंटल कंडीशन या उसके इन्वायरमेंट में क्या मीडिया में क्या शुगर प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे वो अपना जीन एक्सप्रेस करेगा. The development and differentiation of embryo in adult organisms are also as a result of coordinated regulation of expression of several sets of genes. और जो डेवलपमेंट होता है या डिफरेंशिएशन होता है, धीरे धीरे हमें पता है एम्ब्रियो के अलग अलग ऑर्गन अलग अलग टाइम पे बनते रहते हैं. हार्ट बनने लगते हैं, हैंड्स बनने लगते हैं, टोज बनने लगते हैं, हेयर्स आने लगते हैं, आईलिड्स बनने लगती हैं, आईज बनने लगती हैं. तो ये क्यों हुआ? धीरे धीरे टाइम इवेंट के हिसाब से अलग अलग सेट ऑफ जीन्स उसकी एक्सप्रेस हो रही हैं वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में. इसीलिए आफ्टर 9 months ऑफ जेस्टेशन पीरियड अ ह्यूमन बेबी इज बॉर्न. सो इस तरह से also in other animals also, other organisms also, whenever adult organism is created, it is through the help of the development and differentiation of the embryos into adult organism. अब in prokaryotes, control of the rate of the transcriptional initiation is the predominant site for control of gene expression. नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें देख रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स में जो कंट्रोल है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन का कंट्रोल ही जो है मेजर साइट है जहां पर रेगुलेशन करी जा सकती है जीन की. तो यहाँ पे इन प्रोकैरियोट्स कंट्रोल ऑफ द ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज प्रिडोमिनेंट साइट फॉर द कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन. इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट अ गिवन प्रमोटर इज इन रेगुलेटेड by interaction with accessory protein which affects its ability to recognize start sites. तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे ही प्रोकैरियोट्स में ज्यादा कंट्रोल होता है, ये लाइन ये बता रही है. और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमें पता है कि आरएनए पॉलीमरेज किसी भी गिवन प्रमोटर पे हम रेगुलेट कर सकते हैं किसी एक्सेसरी प्रोटीन्स की इंटरैक्शंस की मदद से. यानी कुछ एक्सेसरी प्रोटीन होते हैं जो आरएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच होंगे और फिर वो दोनों मिलकर प्रोमोटर्स पे अटैच होंगे, जो जिसकी वजह से वो स्टार्ट साइट को, जैसे हमने देखा था सिग्मा फैक्टर की वजह से ही आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट कर पा रही थी एट द प्रोमोटर रीजन. So these type of proteins are accessory proteins. These regulatory proteins can also act both positively activators and negatively repressors. तो कुछ ऐसे रेगुलेटरी प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि, अब रेगुलेटरी प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो वो कोई ऐसे प्रोटीन्स ऑलरेडी सेल्स में बनेंगे जो कि इस जीन के एक्सप्रेशन को, ट्रांसक्रिप्शन को या तो एक्टिवेट कर दें, इसकी स्पीड बढ़ा दें, या तो नेगेटिवली इसको एक्ट करें तो रिप्रेस कर दें. द एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोमोटर रीजन्स ऑफ prokaryotic DNA is in many cases regulated by the interaction of proteins with sequences termed operators. और प्रमोटर रीजन की एक्सेसिबिलिटी जो होती है उसकी तो वी कैन से इट्स एबिलिटी और ओपननेस ऑफ द प्रमोटर रीजन ऑफ द प्रोकैरियोटिक डीएनए इन बहुत सारे केसेस में रेगुलेट की जाती है बाय द इंटरैक्शन ऑफ प्रोटीन विद सीक्वेंसेस टर्म्ड ऑपरेटर्स. वो कुछ प्रोटीन से मिलकर और किसी प्रोटीन पे एक्शन, ऑपरेटर प्रोटीन के ऊपर प्रोटीन थ्रू इंटरैक्शन के थ्रू वो एक्सेसिबिलिटी क्रिएट की जाती है. यानी एक ऑपरेटर नाम का सीक्वेंस भी है प्रमोटर के पास
जिसके ऊपर अगर कोई प्रोटीन इंटरैक्ट करता है तो वहां पर ही डिसाइड होता है कि कोई जीन एक्सप्रेस होनी है कि नहीं. द ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू द प्रमोटर एलिमेंट्स इन मोस्ट ऑपरेरॉन्स एंड इन मोस्ट केसेस सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर बाइंड्स टू द प्रेसर प्रोटीन. और ऑपरेटर रीजन पास में ही है, ये लाइन नहीं बता रही है, ऑपरेरॉन में प्रमोटर के पास ही होता है. और बहुत सारे केसेस में जो ऑपरेटर होता है वो एक प्रोटीन से जुड़ता है जिसे रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं. Each operon has its specific operator and specific repressor. हर operon का एक अलग से स्पेशल ऑपरेटर भी होता है और उस ऑपरेटर का उससे ही जुड़ने वाला एक लौता स्पेसिफिक रिप्रेसर भी होता है. फॉर एग्जाम्पल लैक ऑपरेटर है. लैक ऑपरेटर इन इज प्रेजेंट ओनली इन द लैक ऑपरेरॉन. लैक ऑपरेटर सिर्फ लैक ऑपरेरॉन में ही प्रेजेंट है, लैक ऑपरेरॉन की जीन्स में ही प्रेजेंट है और वो इंटरैक्ट करता है लैक रिप्रेसर के साथ ही. किसी और के रिप्रेसर के साथ ये लैक ऑपरेटर वर्क नहीं करेगा, ना काम शो नहीं करेगा. अब लैक ऑपरेरॉन के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि लैक ऑपरेरॉन किसने सबसे पहले दी थी और इसकी डेफिनेशन क्या है. द इल्यूसिडेशन ऑफ लैक ऑपरेरॉन वाज आल्सो रिजल्ट ऑफ क्लोज एसोसिएशन ऑफ जेनेटिसिस्ट फ्रैंकोइस जैकब एंड बायोकेमिस्ट जैकी मोनार्ड. तो इन्होंने दोनों ने साइंटिस्ट ने मिलकर लैकोपेरॉन का कॉन्सेप्ट दिया था. दे वर द फर्स्ट टू इल्यूसिडेट ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सीक्वेंस सिस्टम. उन्होंने सबसे पहले एक ऐसा एग्जांपल दिया कि ट्रांसक्रिप्शन की रेगुलेशन वाला सिस्टम यानी लैकोपेरॉन को इन्होंने एक्सप्लेन किया. इन लैकोपेरॉन हियर लैक रेफर टू लैक्टोज. लैकोपेरॉन में लैक का मीनिंग लैक्टोज है. पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन है. यहाँ पे डेफिनेशन शुरू हो जाती है ओपेरॉन की कि एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन जो कि रेगुलेट हो रही है बाय कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन्स. तो such arrangement is very common in bacteria and is referred to as operon. So what is operon question आता है तो हम ये लिख सकते हैं polycistronic structural gene which is regulated by common promoter and regulatory genes, and such arrangement is very common in bacteria and this arrangement is known as operon. To name few such examples, दूसरे और operons के example हैं lac operon, TRP operon, ara operon, his operon, val operon. जिसमें lac and ara operon तो पॉलीसैकेराइड के ओपेरॉन है यानी शुगर्स के ओपेरॉन है. हिस वैल एंड ट्रिप these are three are amino acids operon, protein synthesis में help करते हैं. The lac operon consists of one regulatory gene, I gene. तो lac operon के अंदर एक regulatory gene है, I gene है. हम लास्ट पैराग्राफ पे आ गए हैं. I gene यहाँ पर does not refer to inducer rather than it is derived from the word inhibitor. जो यहाँ की lac operon की रेगुलेटरी जीन है I जीन, वो यहाँ इंड्यूसर की तरह नहीं जबकि इनिबिटर की तरह काम कर रही है, बिकॉज वो एक्चुअली में इनिबिशन का ही काम कर रही है क्योंकि वो एक तरह का प्रोटीन बनाती है जिसे कहते हैं रिप्रेसर. और ये इस ओपेरॉन को या इसकी जीन्स को ऑफ रखता है, इनिबिट करके रखता है नेचुरल कंडीशन में. एंड इसके आगे रेगुलेटरी जीन के आगे आई जीन के आगे इसमें 3 स्ट्रक्चरल जीन्स भी हैं इस ओपेरॉन में, जेड जीन, वाई जीन, ए जीन, आई जीन. अब इसमें यहाँ पे इनके फंक्शंस बताएं हर एक जीन के. आई जीन कोड्स फॉर द रिप्रेसर ऑफ द लैक ओपेरॉन. द जेड जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बी गैल एंजाइम एंड व्हिच इज प्राइमरली रिस्पांसिबल. उस एंजाइम का फंक्शन होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसैकेराइड लैक्टोज इनटू मोनोमेरिक यूनिट गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज. देन द वाई जीन फॉर परमेज, वाई जीन परमेज नाम की एंजाइम बना रही है. And then the Y gene codes for permease which increase the permeability of the cells to beta galactosides. Y gene permease enzyme banati hai that makes the beta galactoside, that means lactose, to enter inside the cells of the E. coli. The A gene encodes the transacetylase. A gene जो है that is making an enzyme, a transacetylase, that is adding an acetyl group on the entered glycoside so that they do not leave the same way they entered. So because of addition of another extra group, they are unable to cross and move again into the outer environment. Hence, all the 3 gene products of the lac operon in the lac operon are required for metabolism of glucose. So all these 3 genes working together is very necessary for the metabolism of the lactose, for breakdown of the lactose, so that the E. coli cell can
use it. In most other operon as well, the gene present in the operon are needed together to function in the same or related metabolic pathway. इसी तरीके से दूसरे ओपेरॉन्स में भी जो भी जीन्स ओपेरॉन में रखी जाती हैं वो वही जीन्स होती हैं जो एक साथ काम करके कोई मेटाबॉलिक पाथवे में काम आए. That means operon is a cluster of such genes which are working together to function in a related manner for a related metabolic pathways. For example, here ZYA are such that all the three are responsible for metabolism of lactose. Now we'll move to the next page. So this is page very important, and this is the diagram also of the lac operon. Here the concept will become more clear. So the lac operon, you can see in the diagram that there is the first strand, which is the DNA strand, and two cases are shown here in the absence of inducer and in the presence of inducer. What happens? So if this light pink color strand is of DNA strand and it is having various regions showing P for promoter region, I for structural gene I, then next P for again the promoter of these genes Y, ZYA, and O is the operator region. So I gene is making the repressor mRNA, and repressor mRNA is being translated into repressor protein. In the normal case, when there is no lactose in the medium, the repressor is moving and covering the operator region, so that the RNA polymerase cannot has become inactive and cannot transcribe or translate. Firstly, cannot transcribe and form the mRNA of ZYA genes. And thus, when the transcription will not be there, the translation also will not be there. So there will be no enzymes in the absence of inducer, that is the lactose. But what is the next condition? यानी कि हमने ये बोला कि ये डीएनए का सेगमेंट है जिसमें प्रमोटर है, आई जीन रेगुलेटर जीन है, और प्रमोटर और ऑपरेटर और ZY 3 जीन्स हैं. अब इसमें आई जीन हमें पता है कि ये एमआरएनए बना रही है जिसे रिप्रेसर एमआरएनए बोला जाता है. ट्रांसलेशन के बाद ये रिप्रेसर प्रोटीन बनता है. जब मीडिया में लैक्टोज नहीं होता तो ये रिप्रेसर ऑपरेटर पे जाकर अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से रिप्रेसर जैसे ही ऑपरेटर पे अटैच होता है तो आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब नहीं कर पाती ZY की, तो ये ब्लॉक रहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन इनकी स्टॉप रहती है. अब in presence of inducer, the second situation, here also the repressor mRNA is transcribed and then it translated into repressor. Then inducer is present, in this case lactose is present in the media, so it will come, this yellow color inducer will come and will bind to the repressor protein. Now three-dimensional structure of repressor will change, it become inactive, it cannot move and join to the operator. Therefore now the RNA polymerase is free to come here, will join here promoter and operate cross the operator, and then also forms the ZYA. Transcription will occur, mRNA, lac mRNA will be produced, all the three enzymes, Z coding the beta galactosidase enzyme will be formed, Y will be converted into permease enzyme, and A region mRNA code will be converted into transacetylase enzymes. So all three enzymes will be produced in the presence of the lactose. So this we have understood. तो सेकंड पिक्चर में हमने ये समझा कि जब प्रेजेंस होगी इंड्यूसर की, मतलब जब हम खाने में लैक्टोज देंगे बैक्टीरिया को, तो क्या होगा, जो रिप्रेसर बना हुआ होगा आई जीन से, उसमें वो लैक्टोज आके थोड़ा सा अटैच हो जाएगा और फिर उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा, जो कि अब प्रमोटर रीजन ऑपरेटर रीजन पे अटैच नहीं हो सकता, तो जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज आकर यहाँ अटैच होके और इसको ट्रांसक्राइब कर दे रही है, और इसकी वजह से ये तीनों एंजाइम्स ही बन पा रही हैं. अब लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड इट रेगुलेट द स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ द ऑपेरॉन, क्योंकि लैक्टोज ही सबस्ट्रेट है एंजाइम का बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, एंड इसकी वजह से ही ये ऑपेरॉन ऑन हुई है ऑफ हुई है, इसी वजह से इस लैक्टोज को यहाँ पर इंड्यूसर भी कहा जा रहा है. इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रेफर्ड कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज, इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ द बैक्टीरिया, अगर हम नॉर्मल ग्लूकोज की जगह लैक्टोज देने लग गए बैक्टीरिया को मीडियम में, तो लैक्टोज ट्रांसपोर्ट होगा सेल्स में थ्रू द एक्शन ऑफ परमीएज, तो उसको अंदर भी जाना पड़ेगा, तभी तो वो उसको रिप्रेसर को ऑफ करेगा, इनएक्टिव करेगा. तो इसीलिए कहते हैं कि रिमेंबर अ वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन हैज टू बी प्रेजेंट. कम अमाउंट में लैक ओपेरॉन का एक्सप्रेशन हमेशा प्रेजेंट रहता है सेल्स में, हमेशा रहता है, जिसकी वजह से लैक्टोज थोड़ा अमाउंट में सेल्स में आ सकता है परमीएज के एक्शन की वजह से. अदरवाइज लैक्टोज आ ही नहीं पाता तो वो अपना स्विच ऑन भी नहीं कर पाता, ये रिप्रेसर को, ये जो इनएक्टिव रिप्रेसर बन रहा है उसे बना भी नहीं पाता जब तक लैक्टोज येलो कलर का आ नहीं पाता.
The lactose then induces the operon in the following manner. Lactose फिर operon को induce कर देता है. Repressor of the operon is synthesized all the time. अब यहाँ पे mechanism बता रहे हैं कि repressor हमेशा बना रहता है, constitutively माने all the time उसकी expression होती रहती है, I gene उसे बनाती रहती है. Repressor protein binds to operator region of the operon and prevent RNA polymerase from transcribing the operon. Repressor protein का normal condition में यही काम है कि वो operator पे region पे जाके लगा रहता है, जिसकी वजह से RNA polymerase ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाती लैकोपेरोन का इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर. पर जब हम लैक्टोज देते हैं या एलोलैक्टोज नाम का सब्सटेंस देते हैं, दोनों इंड्यूसर की तरह काम कर सकते हैं. द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड. अब ये एलोलैक्टोज या लैक्टोज जाकर रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देता है इंटरैक्शन करके, एंड दिस अलाउ आरएनए पॉलीमरेज टू एक्सेस द प्रोमोटर. और अब की बार आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे जाकर एक्ट कर लेती है एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड हो जाता है. तीनों एंजाइम्स की ट्रांसक्रिप्शन भी होती है, ट्रांसलेशन भी होती है. एंड एसेंशियली रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन कैन आल्सो बी विजुअलाइज्ड एज अ रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय इट्स सबस्ट्रेट. तो ये इस तरह का ओपेरॉन है जिसमें सबस्ट्रेट ने ही अपनी सिंथेसिस को एक्टिवेट करवाया. अपनी एंजाइम की सबस्ट्रेट ने अपनी एंजाइम्स को सिंथेसाइज करवाया सेल्स के थ्रू. Remember, glucose and galactose cannot act as inducers for lactoperon. Can you think for how long the lactoperon would be expressed in the presence of lactose? तो इसमें बोला ग्लूकोज और गैलेक्टोज नहीं एक्ट कर सकते इंड्यूसर्स की तरह, सिर्फ लैक्टोज ही एक्ट करेंगे. फिर आपको एक क्वेश्चन दे रहा है कि कितने देर तक लैकोपेरॉन एक्सप्रेस्ड रहेगा अगर लैक्टोज प्रेजेंस है मीडिया में. तो लैकोपेरॉन आपको ऊपर ही बता दिया इसने कि लैकोपेरॉन तो एक्सप्रेस्ड लो लेवल्स में हमेशा ही रहता है, चाहे लैक्टोज प्रेजेंस हो चाहे ना रहो प्रेजेंस हो. बट जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो जितने टाइम तक लैक्टोज प्रेजेंट होगा उतने टाइम तक तो एटलीस्ट ये ओपेरॉन पूरा फुल एक्टिव रहेगा. रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज नेगेटिव रेगुलेशन. इसीलिए लैकोपेरॉन का रिप्रेसर ने जो कंट्रोल कर रखा है कि रिप्रेसर उसको नॉर्मल कंडीशंस में ऑफ रखता है, तो इस तरह के रेगुलेशन को नेगेटिव रेगुलेशन भी कहते हैं. तो 1 मार्क का क्वेश्चन भी यहाँ बन सकता है कि विच टाइप ऑफ रेगुलेशन इज ऑफ लैकोपेरॉन, नेगेटिव, पॉजिटिव or highly active or highly negative. So negative will be the answer, the negative regulation. Lactoperon is under control of positive regulation as well, but it is beyond. Lactoperon positively regulate भी हो सकता है, but वो जब आप BSc MSc में आते हो, ज्यादा हायर लेवल की स्टडीज करते हो, तब आपको पता चलता है कि किस तरह से वो पॉजिटिवली रेगुलेट भी हो सकता है. तो ये आपका ओपेरॉन्स के बारे में था. यहाँ पे आपका ओपेरॉन कॉन्सेप्ट और ओपेरॉन टॉपिक खत्म हुआ. और आई होप दिस सेशन इज क्लियर टू यू. इसमें हमने 2 ही चीज समझी, ट्रांसलेशन के स्टेप समझ लिए और डायग्राम समझा कि यहाँ पर 3 स्टेप होते हैं. ये राइबोसोम जुड़ते हैं, टीआरएनए जुड़ते हैं, एमआरएनए को रीड करते हैं, चेन ऑफ अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करा जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाया जाता है और खाली अमन टीआरएनए निकलते रहते हैं, नए नए टीआरएनए जुड़ते रहते हैं. लास्ट में जब स्टॉप कोडोन आता है तो आपका रिलीज फैक्टर जुड़ जाता है और ये एमआरएनए भी हट जाता है, राइबोसोम की सब यूनिट भी हट जाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन भी खत्म हो जाती है बनना, तो ट्रांसलेशन खत्म हो. फिर हमने देखा कि रेगुलेशन जीन का यूकैरियोट्स में 4 लेवल पे हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्ट पे. फिर हमने देखा ओपेरॉन के बारे में, देखा हमने कि ओपेरॉन प्रोकैरियोट्स के बारे में देखा कि प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से रीजन है, ऑपरेटर रीजन्स हैं और प्रोमोटर उनकी मेन साइट है जहां पर रेगुलेशन हो रहा है, और वो तब किस बेसिस पे रेगुलेट कर रहे हैं, मेटाबॉलिक नीड के बेसिस पे, फिजियोलॉजिकल नीड और एनवायरमेंटल कंडीशन के बेस पे वो अपने आप को अपनी जीन को रेगुलेट कर रहे हैं. लैकोपेरॉन में हमने देखा कि ओपेरॉन का डेफिनेशन होता है पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन, 4th लाइन में यहाँ पे दिया है, पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रोमोटर रेगुलेटरी जीन सच अरेंजमेंट वेरी कॉमन बैक्टीरिया रेफर टू एज ओपेरॉन. उसके एग्जांपल्स देख लिए, ये सब उसके एग्जांपल. लैकोपेरॉन का हमने पूरा स्ट्रक्चर देख लिया, आई जीन होती है, ZY एंजाइम्स होती है, ऑपरेटर रीजन होता है और हर जीन कौन कौन सी एंजाइम्स बना रहा है. फिर हमने देख लिया लास्ट में कि इसका डायग्राम क्या है, लैकोपेरॉन का डायग्राम ये है. उसके 2 केसेस देख लिए कि एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर में क्या होता है. देन हमने ये सेशन एंड कर दिया. So I hope this session is clear to you, and you will be sending me any doubts if you are facing, and so I would like to end the meeting here. Your doubts are welcome. Thank you.